आपका आउटपुट एंड फॉर्मेटिंग आउटपुट। ठीक है, तो अदर देन राइटिंग द एफिशिएंट प्रोग्राम, generating the desired output is one of the programmer's highest priority. In the chapter 2, briefly introduce the process involved in the generating output on the standard output device. More precisely, you learned how to use the insertion operator and the manipulator ender. The syntax of the cout when used together with the insertion operator is in this form. Cout expression और the manipulator. नेक्स्ट भी आप एक्सप्रेशन और मैनिपुलेटर आप दे सकते हैं, जितने आप देना चाहें उतनी बार आप इसका यूज कर सकते हैं with a single output command. Now here the expression is evaluated and its value is printed, or the manipulator is used to format the output. For example, आपने यहाँ पे लिखा हुआ और लिखा लिखा है हैंडल, तो ये आपका मैनिपुलेटर है हैंडल, जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ न्यू फॉर्मेटिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। द अदर आउटपुट मैनिपुलेटर्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड द सेट प्रिसीजन, फिक्स्ड, शो पॉइंट एंड द सेट डब्ल्यू। इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट जो है मैनिपुलेटर हमारे पास आता है सेट प्रिसीजन मैनिपुलेटर। नाउ यू use the manipulator set precision to control the output of the floating point numbers. जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनको आपको कितने डेसिमल नंबर तक प्रिंट कराना है, वो हम सेट प्रिसीजन की हेल्प से हम करते हैं। जो सिंटैक्स जो होता है आपके पास सेट प्रिसीजन मैनिपुलेटर का, वो होता है सेट प्रिसीजन एन। जो आप यहाँ पे एन की वैल्यू पास करेंगे उतने डेसिमल नंबर तक हमें वैल्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें मिलती है। तो इन जनरल जो आपके पास जो आईडीज होती हैं, ये जो कंपाइलर्स होते हैं, उनमें मैक्सिमम ऑफ 6 डेसिमल प्लेस तक हम जनरली आउटपुट शो कराते हैं किसी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का। However, when an employee's paycheck is printed, the desired output is a maximum of 2 decimal place. To print the floating point output to 2 decimal place, you use the set precision manipulator to set the precision to 2. You use the set precision manipulator with cout and the insertion operator. For example, आप ये लिखते हैं cout set precision 2, then it formats the output of the decimal number, the 2 decimal places, until a similar subsequent statement changes the precision. Notice the number of decimal places or the precision value is passed as an argument to the set precision. And to use the manipulator set precision, the program must include the header file iomanip. We have to use the following header file #include iomanip. Second आपके पास मैनिपुलेटर है, वो है फिक्स्ड मैनिपुलेटर। Now to further control the output of the floating point numbers, you can use the other manipulator to output the floating point number in a fixed decimal format. You use the manipulator fixed. The following statement sets the output of the floating points number in a fixed decimal format on the standard output device. अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सी आउट फिक्स्ड, तो आपका जो आउटपुट होगा, जो फ्लोटिंग डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है डेसिमल नंबर, वो एक फिक्स डेसिमल नंबर तक आपको वैल्यू प्रिंट आउट करा के देता है। फॉर एग्जांपल किसी में 6 डेसिमल, इन जनरल 6 डेसिमल प्लेस तक आप जो है वैल्यू प्रिंट आउट कराते हैं फिक्स्ड के थ्रू। After preceding statement executes, all the floating points numbers are displayed in the fixed decimal format until the manipulator fixed is disabled. So you can disable the manipulator fixed by using the stream member function unsetF. For example, to disable the manipulator fixed or on the standard output device, you use the following statement cout.unsetF and within the bracket iOS scope resolution operator fixed. So after the manipulator fixed is disabled, the output of the floating point numbers return to their default string. The manipulator scientific is used to output the floating point numbers in the scientific format, which generally includes the exponential form. So अब हम यहाँ पे दो आपके पास मैनिपुलेटर हैं, फिक्स्ड एंड साइंटिफिक, इनका हम यूज देखते हैं।
तो ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन एंड हावर्स जो है आपका एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया 35.45 डबल एक डबल रेट इक्वल टू 15.00 डबल टॉलरेंस इज इक्वल टू 0.01 एंड 000। तो सी आउट हावर्स इक्वल टू हावर्स के अंदर जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट आउट करानी है, कॉमा रेट इक्वल टू रेट की वैल्यू हमें प्रिंट आउट करानी है एंड उसके बाद पे इक्वल टू हावर्स इनटू रेट। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं एंड टॉलरेंस इक्वल टू टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करानी है नैंडल एंडल, यानी कि 2 बार जो है आपका कर्सर मूव करेगा नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद ये हमने मैनिपुलेटर हमने यहाँ पे लिखा है साइंटिफिक। तो साइंटिफिक में जो होता है आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वैल्यू आती है, जो 10 की पावर में हम लिखते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर जो भी वैल्यू आपके पास आती है, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 4, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू प्रिंट आउट करेगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। 10 जो 10 होता है 10 टू द पावर उसको हम जनरली रिप्लेस कराते हैं ई से। सो ये साइंटिफिक फॉर्म में हमें ऐसे आउटपुट मिलेगा। सो जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट साइंटिफिक एंड उसके बाद ये हमने यहाँ पे जो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट थी वो हमने दोबारा यहाँ पे रिपीट की है। तो यहाँ पे हमने खाली लिखा है सी आउट साइंटिफिक नोटेशन हैंडल एंड सी आउट, ये लाइन दोबारा हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैं मैनिपुलेटर का यूज करता हूँ फिक्स्ड कमांड का। सो फिक्स्ड कमांड यहाँ पे हमने लिखी है सी आउट फिक्स्ड एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड डेसिमल नोटेशन, और जो लाइन हमने ऊपर लिखी थी वही हमने यहाँ पे कॉपी कर दी है। 3 वे से हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो पहला जो है आपका नॉर्मली जो प्रिंट आउट होता है, सेकंड हमने साइंटिफिक का यूज किया है, थर्ड हमने फिक्स्ड मैनिपुलेटर का यूज किया है। साइंटिफिक में जो वैल्यू आएंगी वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएंगी, ई की पावर समथिंग में आएंगी एंड फिक्स्ड में क्या होता है, जो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो डेसिमल के बाद 6 डेसिमल प्लेस तक ये आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, उसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन। सो लेट्स कंपाइल एंड रन। तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेंगी हावर्स इक्वल टू 35.45, ये वैल्यू हमने दी थी। रेट इक्वल टू 15, लेकिन जो हमने डिफाइन किया था रेट वो हमने डिफाइन किया था डबल डेटा टाइप का एंड वहाँ पे हमने वैल्यू दी थी 15.00। ये हमने ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पर प्रोग्राम में अंदर दी है डबल रेट इक्वल टू 15.00, लेकिन जो आपका आउटपुट जो आया है वो खाली आया 15, यानी कि डेसिमल वाला पार्ट जो था इसने इग्नोर कर दिया है। उसके बाद पे में था इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू हमारे पास आई है 2 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू मिली है। टॉलरेंस इक्वल टू 0.001। उसके बाद की जो वैल्यू थी हमारे पास वो वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिली है, यानी कि 0.01 तक की वैल्यू मिली है। उसके बाद की जो डेसिमल प्लेस की वैल्यू थी 000, ये हमें यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद हमने यूज किया है साइंटिफिक नोटेशन का, हमने यूज किया है यहाँ पे हमने लिखा था सी आउट एंड मैनिपुलेटर का हमने यूज किया साइंटिफिक। उसके बाद ये हमने प्रिंट आउट किया साइंटिफिक नोटेशन। तो हावर्स की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ गया, यानी कि ई 3.545000 एंड ई प्लस 0.0। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू थी 35.45। नेक्स्ट रेट की वैल्यू भी ये आपकी सारी जो वैल्यू आएंगी वो ई की फॉर्म में आएंगी यहाँ पे। उसके बाद हमने यूज किया था मैनिपुलेटर, फिक्स्ड मैनिपुलेटर का हमने यूज किया है एंड हम आउटपुट कराएंगे। तो आउटपुट की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 3 एंड 36। सिमिलरली यहाँ पे 3 एंड 36, 6 डेसिमल यहाँ पे है 3 36 एंड यहाँ पे भी आपके 6 डेसिमल प्लेस है। थर्ड ऑपरेटर, थर्ड मैनिपुलेटर शो पॉइंट। तो शो पॉइंट का काम क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। Suppose that the decimal part of a decimal number is 0. For example यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था डबल रेट, ऊपर वाला जो एग्जांपल था वहाँ पे था डबल रेट 15.0, जो आपका आउटपुट आया था वो खाली आया था 15। सो जो आपके नंबर होते हैं जहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी जो नंबर होते हैं वो खाली 0 ही वैल्यूज है हमारे पास, तो उस केस में जनरली ये जो डेसिमल के बाद जो 0 पॉइंट्स होते हैं वो जनरली इग्नोर हो जाते हैं और खाली आपको इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे। तो बट अगर हम चाहते हैं कि ये मुझे पॉइंट और उसके बाद जो 0 वैल्यू है ये भी मुझे मिले, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं शो पॉइंट मैनिपुलेटर का।
So suppose that the decimal part of a decimal number is 0. In this case, when you instruct the computer to output the decimal number in a fixed decimal format, the output may not show the decimal point and the decimal part. To force the output to show the decimal point and the trailing zeros, you use the manipulator show point. तो हम चाहते हैं कि मेरा जो पॉइंट के बाद जो जीरो जीरो है वो भी मुझे शो कराना है, तो इस केस में हम यहाँ पे शो पॉइंट का यूज करेंगे। तो जो सिंटैक्स है वो हम जनरली ऐसे यूज करेंगे, सी आउट फिक्स्ड एंड शो पॉइंट। तो इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। सो इस प्रोग्राम में हम शो पॉइंट मैनिपुलेटर का हम यूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड डायोस्ट्रीम हैश इंक्लूड डायोमैनिफ, इसका हमें यूज कराना पड़ेगा मैनिपुलेटर का यूज करने के लिए यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। एंड ये हमने लिखा है कांस्टेंट डबल पाई की वैल्यू हमने दी है यहाँ पे 3.14159.265 इंटीजर मेन। एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रेडियस इक्वल टू 12.67, हाइट हमने डिफाइन किया है 12.00। एंड उसके बाद मैंने मैनिपुलेटर का यूज किया है सी आउट फिक्स्ड एंड शो पॉइंट। ठीक है, नाउ सी आउट सेट प्रिसीजन। सो सेट प्रिसीजन का हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट हमें शो करने हैं, उसके लिए हम सेट प्रिसीजन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सेट प्रिसीजन, तो डेसिमल के बाद आपके पास दो डिजिट्स हमें शो करानी होती है। तो ये लाइन 10 सेट प्रिसीजन 2 हैंडल, ये हमने लिखा है यहाँ पे। एंड उसके बाद सी आउट लाइन 11 रेडियस इक्वल टू रेडियस को हम आउटपुट कराएंगे हैंडल। नेक्स्ट लाइन में सी आउट हाइट इक्वल टू हाइट को हम आउटपुट कराएंगे हैंडल। लाइन वॉल्यूम इक्वल टू, ये हमने डिफाइन किया है पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच, ये हमने फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है हैंडल। कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट पाई इक्वल टू, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद ये हमने दोबारा से इसको यूज किया सेट प्रिसीजन को, यहाँ तक जो आपका आउटपुट आएगा वो 2 डेसिमल प्लेस तक ही आएगा। ठीक है, और सेट प्रिसीजन अब हमने कर दिया 3, तो अब जो आपका डाटा आएगा वो 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे लिखा सी आउट सेट प्रिसीजन 3 लाइन 15 सेट प्रिसीजन 3 हैंडल। नाउ सी आउट जो अभी हमने ऊपर लिखी थी लाइंस रेडियस हाइट एंड वॉल्यूम, वो हमने यहाँ पे कॉपी कर दी है। ठीक है, तो ये आपकी वही लाइन है, रेडियस को हम डिस्प्ले कराएंगे, हाइट को डिस्प्ले कराएंगे, वॉल्यूम को हम डिस्प्ले कराएंगे एंड पाई को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। उसके बाद अब हम सेट प्रिसीजन जो है वो चेंज करेंगे, सेट प्रिसीजन 4। अब जो आपका जो डाटा आएगा वो 4 डेसिमल प्लेस तक आएगा, शो होगा आपका। सो ये फिर हमने दोबारा से वही लाइन जो है हमने यहाँ पे कॉपी कर दी है, सेट प्रिसीजन 4 एंड उसके बाद जो लाइन थी आपकी रेडियस हाइट वॉल्यूम एंड पाई, ये वाली हमने दोबारा कॉपी कर दी है, ये हम इनको डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है सी आउट सेट प्रिसीजन 3 रेडियस एंड कॉमा सेट प्रिसीजन 2। अब ये जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो 3 डेसिमल प्लेस में आएगी, और एंड हाइट की जो वैल्यू आएगी वो 2 डेसिमल प्लेस में आएगी यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 5 डेसिमल प्लेस तक, ऐसे हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। लेट्स कंपाइल एंड रन। लाइन 10 ये हमने लिखा था सेट प्रिसीजन 2। तो उसके बाद जो रेडियस की वैल्यू है आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हमने फिक्स किया है, तो रेडियस की वैल्यू आई है 2 डेसिमल प्लेस में एंड हाइट की जो वैल्यू आई है 0.00। अब यहाँ पे हमने शो पॉइंट का हमने यहाँ पे यूज किया है, ये हमने यहाँ पे यूज किया है शो पॉइंट का। तो ये जो आपकी वैल्यू थी 12.00, सो ये आपके एचडी प्रिंट आउट हो जाती है 12 पॉइंट, यानी कि डबल डेटा टाइप में अगर डेसिमल के बाद अगर 00 है तो उस 00 को भी वैल्यू को हमें प्रिंट आउट कराना है, तो उसके लिए हम शो पॉइंट का हम यूज करते हैं। इसको मैं एक बार इसको डिसेबल करूंगा एंड फिर हम रन करेंगे, तब आउटपुट आप चेक करना क्या आएगा। 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ रही है यहाँ पे ड्यू टू द सेट प्रिसीजन, एंड ये जो 0.00 ये जो वैल्यू आई है वो शो पॉइंट की वजह से आई है, शो पॉइंट मैनिपुलेटर की वजह से आई है हमारे पास। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, हटा देता हूँ वहाँ से, तो ये यहाँ पर 12 ही आएगा,
ये 0.00 ये जो है आपको इग्नोर कर देगा, ये जो है 0.00 को यहाँ पे इग्नोर कर देता है, इसको डिस्प्ले नहीं कराता है। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आती है 2 डेसिमल प्लेस तक। पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद हमने सेट प्रिसीजन हमने किया है 3 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू चाहिए। तो सेट प्रिसीजन 3, अब इनको दोबारा से हमने आउटपुट कराया था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे वो 3 डेसिमल प्लेस तक आएंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद हमने लिखा सेट प्रिसीजन 4, तो सेट प्रिसीजन 4 एंड दोबारा से हमने इनको रन कराया था ये वैल्यू को। अब जो आपका आउटपुट आएगा वो 4 डेसिमल प्लेस तक आएगा, 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने लिखा था सेट प्रिसीजन 3, तो ये आपका 3 डेसिमल प्लेस है। उसके बाद 2 लिखा था तो 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद हमने लिखा था 5 डेसिमल प्लेस, तो ये आपका आउटपुट आ गया 5 डेसिमल प्लेस। इसका हम यूज करते हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें शो करने हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड फिक्स्ड का हम यूज करते हैं, फिक्स्ड कमांड का हम यूज करते हैं, जो आपका डाटा होता है वो 6 डेसिमल प्लेस तक जनरली वैल्यू शो करता है। शो पॉइंट का काम होता है शो पॉइंट मैनिपुलेटर। अगर आपके पास कोई डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, डबल डेटा टाइप की कोई वैल्यू है, मान लेते हैं x, उसके पास वैल्यू है 15.00 वैल्यू आती है, तो ये जनरली ये पॉइंट और जो जीरोज वैल्यू होती है उनको इग्नोर कर देता है, और हमें चाहिए कि ये इसको भी प्रिंट आउट कराए, तो उसके लिए हम शो पॉइंट का हम यूज करते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को फिक्स्ड और शो पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूँ, तो ये आपका जो आउटपुट है वो आपका अलग आएगा। ये आप देख सकते हैं 12 पॉइंट जो 00 वैल्यू आई थी वो नहीं आई है, 12.00 वैल्यू, 12.00 वैल्यू यहाँ पे इग्नोर हो गई है। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ गया है, ये भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। तो अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड पॉइंट के फॉर्म में आए तो आपको लिखना पड़ेगा फिक्स्ड, तो वो आपका जो वैल्यू है वो 0 डेसिमल के बाद आपका 6 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू आपके पास जनरली मिलती है, अगर आप सेट प्रिसीजन का यूज नहीं करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंड सेट प्रिसीजन में 2 जो है इसको मैं जनरली मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो ये आपके पास 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ गई है, 336 एंड यहाँ पे भी आपके पास 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो मैं कम्प्लीटली लाइन को ही मैं एक बार इग्नोर कर देता हूँ ताकि ये आपका सी आउट भी नहीं आएगा। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन कराता हूँ। सेट प्रिसीजन 2 मैंने हटा दिया है, फिक्स का हमने यूज़ किया है, तो ये आपकी जो वैल्यू है 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आपके पास आ गई है। यहाँ पे सेट प्रिसीजन 3 का हमने यूज़ किया तो 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आई है, 4 लिखा है हमने 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आई है, एंड सिमिलरली यहाँ पे